Students, ठीक है जी. So here we go. We have a very recent paper question on incomplete record or incomplete records. Okay, जिसे हम chapter कहते हैं. So let's write it down. It's a sole trader as well. So incomplete records, and we have this as October, November. Okay, so it's basically October, November 2022, and variant and paper 23. Okay, so a complete 30 marks question that we are going to solve. A lot of parts are there. Till G part we have to solve. So let's get started and let's discuss, okay, how this type of question needs to be solved. Okay, clear? Students got it? So there is a person, Reese, a sole trader. He does not maintain a full set of accounting records. So when you hear this terminology and when you hear this word, so you need to understand that there must be some missing figures. यहाँ पर भी question mark डला हुआ, we can see that, right? Following students, clear? ठीक है? No problem. Can I get response as well? So that will be good. Clear. So we have this thing, and then he has provided, the Reese has provided the following information for the year ended. So this information is available. As always, when we start the questions, you need to determine which is your year. Okay, so this is closing balances and this is opening balances. Getting it? So we are starting on 1st July. The year is starting on, the financial year is starting, sir, on 1st July 2021, and it's ending on 30th June 2022. Clear on this? No problem, sure, no issues. So this is a 12-month period. We are starting on 1st July 2021 and ending on 30th June 2022. Got that right? Clear? No problem. Clear. Sure. Then information is provided. Cash account is there. So cash, debit balance and debit balance, opening, closing, electricity is accrued. Inventory is given. Opening and closing inventories are given, sir. Machinery, opening cost and opening depreciation is given, sir. So definitely they are testing what? They are testing your depreciation concepts as well. Whether you guys know how to solve depreciation, how to calculate depreciation, so they are testing on that as well. Okay. Then you have rent paid in advance, again accrued, prepaid. We have to make the account, T accounts, trade payables, trade receivables. So these are information is given. Then you have been given the bank account summary as well, which means that debit balance and the credit balance. So bank account is there, and you should already know that these are, sir, the receipts. Whatever you got whatever you got it here, whatever you receive, put it on the debit side. Whatever you have paid for the expenses or asset or any outflows will be recorded on the credit side. Got it? Inflows on the debit side, outflows on the credit side. Got it, dear students? Clear? Clear. Okay, just read the adjustments as well. Sorry, as I said, I have some flu as well. Just read the adjustments, okay? Okay, so moving forward, got this. Okay, so this is the information. You should be familiar with the information. Some 5 adjustments are there. Okay, so we have total cash sales for the year. So we have been given cash sales. Then there is some, again, another important thing. This will help you identify that this question is incomplete records. Getting it? That Reese also has paid cash for the wages during the year, but had not recorded this, which means cash wages. He paid wages for some cash. And then Reese took $450 per month for drawings. He had also taken goods for his own use. So some more drawings are there. So the drawings are in both forms. There are cash drawings as well, students, and there are drawings from the purchases as well. People getting it right? Clear? No problem. Understood? During their machinery that had cost, so machinery adjustments are there. So 5 adjustments we'll have to accommodate. Let's start with what is the first part. Okay, so now they have divided, the requirements are, they have divided into a couple of portions. Okay, so let's quickly work it out, how you're going to spend time and how to work out. The first part is calculate the total credit sales for the year ended. And you need to understand that this is October, November 22. So similar type of question can be expected in October, November 23 as well. Getting it? So be very careful and understanding. So we have to find out, students, हमें credit sales find out करनी है, ठीक है? Total credit sales कितनी है? तो always remember, there is a tip as well and trick के you need to know कि जब भी हम incomplete records कर रहे होते हैं, most probably हमें sales ledger control account. Can I get the other person response as well? Both getting it right. हमें sales ledger control accounts को
और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट्स को लेके आना होता है, तो आपके वो ये भी टेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में वो सब चीजें टेस्ट कर सकता है, आपके टी अकाउंट्स कॉन्सेप्ट, एक्रूड प्रीपेड कॉन्सेप्ट, ओके, आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी टेस्ट कर सकता है, डेप्रिसिएशन भी टेस्ट कर सकता है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके। कोई एरर भी दे सकता है। तो हम सिंपल, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेट लिखा है तो देर इज नो नीड टू मेक टी अकाउंट्स, ओके, कैलकुलेट लिखा हुआ है। गेटिंग इट, बोथ ऑफ यू गेट, एवरीवन क्लियर के जो है इट्स रिटन कैलकुलेट, सो इट्स नॉट अ बिग इशू, but better we do it by a T account form, so that will be realistic and you get understand better, okay, from the T account perspective, okay. But this is not compulsory, okay. जरूरी नहीं है कि हम T account draw करें, you can do it without the T accounts as well, okay. Got that, students? So here we go. Sales ledger control account I am making, from which will help us find out the getting it. If you know the format, that's very good, but I'll provide the format as well. It's somewhere down in my drive, okay. So here we go. Sales ledger control account. So we need receivable sales means the debtors, right? Sure, following that, right? Clear, Laiba? Rania got it. So sales means the debtors, and our trade Yes. receivable, in other words, okay. So it will be opening balance. Make sure, a lot of students make the first common mistake or silly mistake, you can say. They will not read the data properly. They will not read the data properly. Data properly needs to be read, because whatever the opening balance is, we have to take that as opening, and whatever the closing balance is, we have to take that as closing balance. Got it clear on this? So here we go. Opening is 23,580. So here we go. It is going to be 23,580 as balance brought down. Got that clear? And 20,620 as the closing balance. So let's write it that down here. 20,620 as balance carried down, okay. And then what else you have? You have the payments that you have received from your debtors. Customer ने आपको payments किए हैं. Credit customers, here you go. Credit customers, how much they have paid? $149,810. So you should know how to extract the information, okay. Getting it, Rania? Clear, Laiba? Everyone got this? Okay, you should know how to extract the information. So here we go. It will be, sir, 149, because bank is being debit. So the customer's account, that is the debtor's account or customer's account or receivables account, will be credited, okay. Hope you know the logic and the debit credit thing, okay. Got this clear? Okay. So this will be receipts, or you can say whatever this is written, credit customers, okay, or receipts from customers. That's a better word. You can write receipts from customers, okay. As I said that they're asking for calculate, so there is no need to make T account. Just for the next question we do on incomplete records, we are going to do it directly, okay. But here I'm doing it. Why? Because of we are explaining it, so that's why I'm doing it. That better to understand from T account perspective. So here we go. The credit sales are going to come from this, the balancing figure. So here we go. The credit sales are there. And now what you can do is just show to the examiner that credit sales are how much. What are you going to do? Add the credit side. Okay, you're going to add $20,620 plus 1,149,810 minus the 23,580. So here we go. We will get the final figure. So we do that and we write it there and we show to the examiner that that's how we are going to get the values. So it's coming 146,850 and you got the 2 marks. Okay, 146,850. Clear on this? Laiba got this right? No problem, Laiba, not responding. Yes, sir. Similarly, in the similar way, Rania, we have to go at calculate the total credit purchases for the year ended 30th June 2022. So we have to calculate the total credit purchases. So we'll go in the same way. Getting it clear? But this is 1 mark as well, because the examiner is expecting you that if you get the trick from the first part, because a lot of students will struggle that how do we find out the credit sales? But if you know the nature of incomplete records, what they expect you in this chapter, so you can easily do it. So that's why we are going to do purchases, ledger control accounts, exactly same way, okay? Getting it exactly same way. Following that? Clear? So purchases, ledger control account will be made. Are you guys following with me there? So it will be balance brought down coming here, Yes. sir. The opening balance, the closing balance will be coming here, sir.
And this time, this is our suppliers, our creditors. This is, we have to pay them. We have to pay our suppliers, creditors, or payables. And that is why we are going to say that this will be payments to suppliers. Okay. So payments to suppliers will come here. This is also a good revision for control accounts as well. Okay. So payments to suppliers. And here we go. Just let's write down the information. Follow very carefully. Opening balance is this. Let's make it a different color. So follow carefully. This is the opening balance, sir, closing balance. And as I said, that you should be able to extract the information properly. And that is what I'm doing here very carefully. Okay, students, got that? So here we go. 80,140 is coming here. Payments to supplier. Closing balance is coming as 8,520. And the opening balance is coming as 6,285. Got that clear? No problem, no issues, no concerns. Guys, clear on this? Problem. Okay. Yes, So sir. here we go. The next thing we got it will be the credit purchases, and that will be the balancing figure here. So we got credit purchases, and we got first 3 marks quickly. So it will be the closing balance here, balancing figure. Make sure workings are important. You get marks based on that. Okay. So do it the same way that I'm doing. Utilize this place. Sometimes students just do it in the calculator and don't show it, and that's why they lose marks. Okay. So people need to understand that you might be good at it, but if you're not showing anything to the examiner, then you lose marks. And that is why the grade comes different. Okay. Clear on this? So we got it. We add 80,140 plus we add 8,520 minus 6,285. We got 82,375. Got this? Clear on this? No problem. And this Yes. is going to be our 82,375. It's correct. And here we go. This is our another answer that we have found, and we got 1 mark as well. Okay. Let me know. Got it? You can take screenshot once I finish. Okay. Just follow at the moment. Okay. Okay, sir. Got this clear? No problem, right? No issues? Sure. No, sir. No. Now comes the more tricky part, difficult part. We have to calculate the total cash that is paid for wages during the year ended 30th June 2022. So basically what is they're asking? They're asking the adjustment number 2 working out that Reese also had paid cash for the wages during the year, but had not recorded this. So they are giving the hint themselves. Okay, students, that's why you need to do a lot of practice. Okay, they are giving the hint themselves. पार्ट सी के हमें वेजेस निकालनी है जो कि हमने कैश में पे करी है. एक वेजेस हैं, आई होप स्टूडेंट्स आर गेटिंग इट. एक वेजेस हैं सर, एक तो ये वेजेस है. ये जो वेजेस हैं सर, ये जो है बैंक से पे हुई है. ओके, दिस आर पेमेंट मेड थ्रू चेक्स. ओके, ये जो इलेक्ट्रिसिटी हुआ है ये भी मेड थ्रू चेक है. सही है. तो बट हमने कैश में ही वेजेस पे करी है. गेटिंग इट? हमने कैश में ही वेजेस पे करी है. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड वी डू? और लेट मी गिव यू अ हिंट. We need to make a T account here as well. So which T account we should make? The hint is inside the question. Sir, cash. Exactly. Excellent. We have to make the cash account. Okay. Because the first thing, they are making it bold as well. Okay, they are making the cash thing bold as well. And the other thing is that we have a lot of information about the cash account. Getting it? Because this doesn't come often. Okay, so if they have given the cash account balances, which means कि अगर उन्होंने opening और closing balances दिए हुए, तो हर चीज की इंपॉर्टेंस है. कोई भी यहाँ पर ऐसे आइटम नहीं होगा. There is not a single item which will not help you out. कुछ का पार्ट ई में काम होगा. वी हैव टू वर्क आउट सम इन पार्ट ई, सम विल हैव टू वर्क आउट इन पार्ट डी, बट एवरी इंफॉर्मेशन इज यूटिलाइज समवेयर. ओके, गेटिंग इट? यस. एमसीक्यूज में थोड़ा सा होता है कि इंफॉर्मेशन को हमें रिडंडेंट करना होता है बिकॉज वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देते हैं, तो आपको उनको यूज नहीं करता. बट नॉर्मली जो पेपर 2 होता है उसमें ऑल द क्वेश्चंस विल रिक्वायर सम वर्किंग फ्रॉम योर एंड. ओके, क्या आपने एक्सप्लेन अंडरस्टैंडिंग करनी है. तो सी इफ यू कैन मेक द कैश अकाउंट. ओके, I'm giving you a couple of minutes. Okay, think about it. How will you make the cash account? Values are in front of you. This is enough. Couple of this page is enough to well calculate the cash account. Okay, it's a 3-mark question, so think about it. How you can get the 3 marks by making the cash account.
So let's make the T account as well, okay? For the cash account, okay? Getting it, everyone following? जी sir. Let's work it out. Okay, so here we go. So let's me make the cash account here as well, and we'll try to complete it in 3 columns. Let's see. So here we go. The cash account, you make the cash account, okay? So this is the cash account. You write the opening balance first. That's the first thing. The opening balance is 240 and the closing balance is 110, okay? So we got opening balance as 240. So this is basically balance brought down, and let's make it write it here, balance carried down, the closing, because both of them are positive, right? 110, and cash cannot be never negative, right? Because cash will finish but not become negative, okay? Getting the point clear on this? Understood? Okay, so balance brought down becomes 240, balance carried down becomes 110. Clear both? Everyone got this right? Laiba got it, Rania? Sure? जी sir. Yes. Now, the thing is that we'll start try to put adjustments and values, okay? You can see that there is written first thing, if you look at the adjustment, there were total cash sales, okay? You have to think very carefully in this, okay? You can't miss anything. So first adjustment says that total cash sales for the year were 15,280. So what's the adjustment for this? Like what's the journal entry for this? So you got cash sales, so cash debit, money comes in, and sales credit, right? Am I correct? Yeah. Cash debit and sales credit, because the revenue comes in, revenue increase on credit side, and cash will become debit because cash increases. So can we say that you have to put in, sir, 15,280 here because of the reason that why? What is the reason? Because of the cash sales, right? Am I correct? Or am I right? 15,280. Got it? कैश डेबिट हो जाएगा ना, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, अभी हमने यहाँ लिखा कैश डेबिट हो रहा है और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो कैश का अकाउंट डेबिट करना, तो मैंने कैश में डेबिट कर दिया, 15,280 की सेल्स हुई थी. गॉट इट? क्लियर ऑन दिस स्टूडेंट्स? क्लियर बोथ? ओके. उसके बाद वो ये कह रहा है कि लेट्स वर्क इट आउट दिस एज वेल, कि द सोल ट्रेडर हु ही टुक $440 per month drawings before the cash sales were banked. ठीक है, तो जब हमने कैश सेल्स को बैंक में डाला था, everyone knows what is cash sales banked. कैश सेल्स का बैंक का मतलब है कैश सेल्स बैंक, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि होता क्या है नॉर्मली इन द प्रैक्टिकल लाइफ. व्हाट हैपेंड कि आपने कुछ सेल्स करी, आपको कैश मिल गया. गॉट इट लाइबा? रानिया गेटिंग इट? कि यू सेल सम आइटम एंड यू गॉट द कैश, ओके, और फिर आपने उसको अपने बैंक में डाल दिया, तो इट्स जस्ट यू रिसीव कैश एंड देन यू आर ट्रांसफरिंग इट टू द बैंक अकाउंट. गेटिंग इट? क्लियर? तो कुछ जो है वो यहाँ पर ड्राइंग्स भी हुई हैं in terms of cash drawings, so everyone know what is the nature of that, right? So hope everyone is following, right? कि यहाँ जो है nature क्या होती है कि drawings जो है वो debit होती हैं, drawings are contra to capital, drawings debit होंगे और cash drawings की हैं, तो simple सी बात है cash कम होगा, right? Students getting it clear? Yes sir. Hello? ठीक है, सेम जैसे यहाँ पर था कि सेल्स की थी तो कैश डेबिट हुआ था, सेल्स की तो पैसा आ गया, रेवेन्यू आ रहा है, तो कैश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स का अकाउंट. इट्स जस्ट लाइक दिस वन, ओके, कि वॉट एवर इनफ्लोज आर देयर इट्स रिटन हियर एज वेल. रिसीप्स, जिस तरह बैंक अकाउंट है उस तरह हम कैश अकाउंट बना रहे हैं. स्टूडेंट्स, होप एवरीवन इज गेटिंग इट. जिस तरह वो बैंक अकाउंट है उस तरह हम कैश अकाउंट बना रहे हैं. रिसीप्स का मतलब है कि इनफ्लोज आ रहे हैं, तो इनफ्लोज जो होंगे वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और आउटफ्लोज जो होंगे वानिया, सो वो हम क्रेडिट साइड पे ऐड करेंगे. एवरीवन गेटिंग दिस राइट? क्लियर ऑन दिस, राइट? श्योर? Yes sir. ठीक है, सो दैट्स इट. फिर आपने करना है कि 450 इंटू, क्योंकि पर मंथ है $450 पर मंथ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि सर कैश में ड्राइंग्स भी हुई हैं, तो जो ड्राइंग्स हुई हैं वैल्यूज शो कर दें, $450 इंटू 12 मंथ्स करके, जो भी वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर बेस्ड, यू कैन राइट दैट डाउन देयर, ओके. 5400 ये वाली वैल्यू आ रही है. क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो ये सारी एडजस्टमेंट्स आपने करनी है. एवरीवन गेटिंग इट? द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द कैश सेल्स बैंक. अब ये अंडरस्टैंड करना है कि बैंक के अंदर हमने कैश सेल से अर्न किया, हमने बैंक के अंदर उसमें 7,170 डाल दिया. तो स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो कैश क्रेडिट होगा. मतलब जो हमने सेल्स की थी ना कैश में,
उसको हम बैंक कर रहे हैं। गेटिंग इट एवरीवन? तो हम जो है वो जी ये सर। लिखेंगे कि हमने जो सेल्स है, कैश सेल्स जो बैंक होंगी वो यहाँ पर क्रेडिट पे आ रही होंगी, सही है? तो कैश सेल्स बैंक जो होंगी वो क्रेडिट पे आ रही, बिकॉज हमने कैश से निकाला तो कैश को क्रेडिट करा। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी कि हमने बैंक को डेबिट करा, आपके सामने है कि बैंक को हमने डेबिट करा है, बैंक और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज कैश से हमने निकाल दिया वो। तो 7,170 जो है वो हमने कैश से निकाल दिया। एवरीवन गॉट इट? ठीक है जी। यस। और अब बच क्या जाता है, और कोई कैश आइटम है नहीं, ये सारा बैंक के थ्रू है। वेजेस की पेमेंट, ये वाला वेजेस जो है, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल एक्सपेंसेस, न्यू मशीनरी, रेंट, ये सब जो है बैंक के थ्रू है। क्रेडिट सप्लायर्स को पे करना, क्रेडिट कस्टमर से फीस पैसे रिसीव करना, सब बैंक के थ्रू है। कैश के थ्रू क्या हुआ था सर? कैश के थ्रू एक तो ये हुआ है कि ही टुक 450 पर मंथ ड्रॉइंग्स बिफोर द कैश सेल्स वर बैंक्ड। ओके, गेटिंग दैट क्लियर? ठीक है, बाकी तो गुड्स की बात हो रही है ना, तो वाली एडजस्टमेंट अभी नहीं लेंगे, ये तो गुड्स की बात हो रही है। गुड्स और कैश में फर्क है, होप एवरीवन नोज दैट, राइट? गुड्स तो परचेजेस में आ जाएगा, फॉलोइंग द पॉइंट। गुड्स जो है वो परचेजेस में आ जाएगा। और बाकी फोर्थ और फिफ्थ एडजस्टमेंट जो है वो मशीनरी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। और फर्स्ट एडजस्टमेंट को ही मैंने अकोमोडेट कर दिया, और कोई भी ऐसा आइटम नहीं बचता जो कि कैश से रिलेटेड हो। गेटिंग इट स्टूडेंट्स? क्लियर? कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट या आइटम इज नॉट लेफ्ट दैट इज रिलेटेड टू कैश, एंड दैट इज व्हाई वी हैव डन एवरीथिंग। अब लेट मी नो कि व्हाट इज द लेफ्ट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड आउट the total cash that is paid for wages, right? People getting it? Yes sir. The requirement is to find out the total cash that is, the requirement is to find out the total cash paid for wages during the year. So let me know, wages is what? Wages is an asset, Also, liability, expense, revenue. wages क्या है? expense. एक्सपेंस है, तो वेजेस कहाँ आएगा? तो अगर हम जर्नल एंट्री Debit. बनाएंगे तो वेजेस डेबिट होगा, राइट? और कैश का अकाउंट क्या होगा? अगर कैश में पे करे तो कैश Credit. क्या होगा? क्रेडिट, राइट? सो विच मीन्स, होप यू गाइस गॉट इट, कि सर वेजेस यहाँ पर आएंगे क्रेडिट साइड पर, और वही हमारा जो है बैलेंसिंग फिगर होगी। पीपल गॉट इट? क्लियर ऑन दिस? श्योर? Yes. ठीक है, ये आप वर्किंग साइड में भी कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू शो। लेट्स क्विकली डू इट। 15,000, or let's avoid the dollar sign now. 15,280 plus 240 minus 54 minus 5,400 minus 110 and minus 7,170. So whatever the answer you get, that's the answer. Okay, got it, people? Clear? Yes. Yes sir. Some calculation error is coming. Let's do it again. Let me know. Make sure you help out with the calculator part. Maybe I can make mistakes. So 2,840 is coming, sir, which is correct. And we get the 3 marks here as well. Got it? Sure about it? No problem. Clear on this? 2,840 is coming here. And we got the marks here as well. Sure. 3 Yes. marks here as well. So 6 marks out of 30 marks are done. Next, we have to calculate for 3 marks again, depreciation. Calculate the depreciation charge for the year ended 30th June. So they are asking for the depreciation expense amount for 3 marks. Okay, so we have to calculate the depreciation charge for the year ended 30th June 2022. Okay, getting it clear? Sure. So we have to find out the current year. This means that we have to find out the current year depreciation. Understanding? Clear concept? No problem. Current year हमने depreciation find करनी है. Can I move forward? Should I move forward? Okay. So what things we have? We have couple of important information. We have the opening cost. Okay, follow very carefully, sir. We have the opening cost of machinery. We have the opening depreciation of machinery. Then the policy is there. Machinery is to depreciate it at 15% per annum using reducing balance method. A full year depreciation is charged in the year of purchase, but none in the year of disposal. Okay, so full year depreciation is charged in the year of purchase, but none in the disposal. Next thing you need to know that during the year, machinery that had cost $6,000 on 1st July 2019 was sold, and you have bought a new machinery as well for 9,200, and you have sold some machinery as well for $4,000 as well. Got it clear on this? Any problem, any issues, any concern? No sir. Okay. No. So we'll have to work a bit hard for this one for 3 marks. So work out. If you have to find the current year depreciation,
always go with this. अच्छा, ये policy important है कि we are going to charge depreciation in the year of purchase, but none in the year of disposal. So you need to understand, students, okay, we can do the CDA method. That is, C stands for the continuation, D stands for disposal, and A stands for acquisition. Okay, getting it clear? Clear. ठीक है. Let me explain, okay? So what we are going to do here, acquisition means if any new asset is coming. तो कोई भी new asset हमने basically अपनी new machinery purchase करी है, तो it doesn't matter जब हम new asset purchase करते हैं तो पहले आप simply एक mark तो directly हासिल कर लें कि सर क्योंकि हमने new machinery purchase करी है for $9,200 और क्योंकि the policy is mentioned that a full year depreciation is going to be charged, doesn't matter कब purchase की हो, in the year of purchase. तो क्योंकि हमने ये इस साल परचेज करी है न्यू मशीनरी, एज वी कैन सी के ये जो बैंक अकाउंट है ये इस साल का है, तो 9,200 पे आप एग्जैक्टली 15% डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, तो आपको कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे. गॉट इट? क्लियर? गेटिंग दैट स्टूडेंट्स? क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो पहले आपने इजी पार्ट कर लिया, 9,200 15% हमने अप्लाई कर दिया सर. आई एम गेटिंग इट एज 1380. ओके, $1,380 हमारे पास आ गए, इसकी डेप्रिसिएशन हो गई 1380. गॉट इट एवरीवन? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वन थिंग इज क्लियर, एक्विजिशन हो गया. ठीक है, अब जो नेक्स्ट थिंग है वो ये करेंगे कि हमारे पास जो साल के स्टार्ट में थी, ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आ जाए तो यू हैव टू टेक नेट बुक वैल्यू. ओके, यू हैव टू डेफिनेटली टेक व्हाट? नेट बुक वैल्यू. बट क्योंकि एसेट न्यू था तो वहां पर कॉस्ट पे अप्लाई करा. गेटिंग इट? यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पशन. एग्जाम्पशन क्या है, या जो रूल अप्लाई नहीं होता. इफ इट्स अ न्यू एसेट, हमने पहले साल एसेट यूज कर रहे हैं, तो उस पे जो है वो कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी. गेटिंग इट? जो क्योंकि कॉस्ट पे चार्ज होगी डेप्रिसिएशन, सो दैट इज वाई जो है वो 9,200 का 15% करेंगे. बट वो जो ओल्ड मशीनरी चल रही है उस पे हम नेट बुक वैल्यू से स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें आप पहले ही कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कर लेंगे. तो 18,480 जो है वो कॉस्ट है, और इसमें से हमने एक्यूमुलेट ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा हमारे पास. हमने कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया. गॉट दिस क्लियर? हमारे पास आ गया है 8,795. अंडरस्टूड? दिस इज द नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट. ओके, गेटिंग इट क्लियर? नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. गॉट दिस क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, No, sir. दिस इज सी एंड दिस इज डी. ओके, द डिस्पोज, डी स्टैंड्स फॉर डिस्पोजल. ठीक है, ये क्लियर है? हमने नेट बुक वैल्यू ओपनिंग की निकाल ली है. ओपनिंग नेट बुक वैल्यू क्या है? ठीक है, और सी इज द कंटिन्यूड यूज, और ए स्टैंड्स फॉर एक्विजिशन, जो भी आपने इस साल खरीदा है एसेट, हमारे केस में मशीनरी ही है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड. अब ये पता होना चाहिए कि सर बिकॉज द पॉलिसी सेज के कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी जिस साल में डिस्पोज करें, तो इस साल में जो मशीनरी है 6,000 की उसको डिस्पोज कर रहे हैं. गेटिंग इट एवरीवन? जिसकी कॉस्ट $6,000 थी, इस साल वो डिस्पोज कर रहे हैं. ऑन 1 जुलाई 2019 को खरीदी थी, इस साल उसको डिस्पोज कर रहे हैं. डेट मैटर नहीं करती है फॉर द डिस्पोजल डेट, क्योंकि हम जो है वो हम पॉलिसी चार्ज कर रहे हैं इन द ईयर ऑफ परचेज एंड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल. ईयरली पॉलिसी है, राइट? गेटिंग इट? और मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है. क्लियर? गेटिंग इट रानिया? तो समझ आ रही है बात? ठीक है, Yes. तो अब आपने ये देखना होगा कि आपके, क्योंकि ये जो नेट बुक वैल्यू है इसके अंदर डिस्पोजल वाले एसेट की भी नेट बुक वैल्यू है, तो वो रिमूव करना पड़ेगा और फिर कंटिन्यूड यूज आएगा, उसकी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे. ठीक है, गेटिंग इट? तो हम ये देखेंगे कि हमारा साल कब शुरू हो रहा है. हमारा साल 1 जुलाई 2021 को स्टार्ट हो रहा है और 30 जून 2022 को खत्म हो रहा है. तो यू विल हैव टू मेक द टाइम टेबल हियर कि ये जो है जो डिस्पोजल वाला एसेट है, मतलब ये एडजस्टमेंट नंबर 4 के लिए वर्किंग करें, उसने इंफॉर्मेशन दी ही इसीलिए ताकि आप इसको वर्क कर लें. तो स्टूडेंट्स के सर जुलाई 1 2019 टू जून 30 2020 एक साल हो गया, और फिर 2020 के जुलाई से जून के 30 2021 तक सेकेंड ईयर हो गया, और 2021 से 2022 जो है जुलाई टिल जून ये थर्ड ईयर हो गया जिसमें अभी हम हैं. गेटिंग इट स्टूडेंट्स? क्लियर है? ये हमारा करंट ईयर है. स्टूडेंट समझ आ रही है बात? ये जो है हमारा करंट जी ईयर है सर. सर, ये हमारा करंट ईयर है. और वो जो एसेट है सर, ये हमारा करंट ईयर है जिसमें हम इस एसेट को डिस्पोज कर रहे हैं. ऑरेंज हाईलाइटर में फॉलो करेगा सर, ये हमारा दिस इज आवर करंट ईयर जिसमें हम इस एसेट को डिस्पोज कर रहे हैं. तो इस साल इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, तो मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया है. इस एसेट को हमने
2019 में जब साल ईयर स्टार्ट हुआ था, फाइनेंशियल ईयर बिगिन, वी परचेज दिस एसेट ऑन 2019 टिल 20, एक साल यूज करा और सेकेंड ईयर यूज करा, तो हम उसकी डेप्रिसिएशन वर्कआउट कर लेंगे। गेटिंग इट? फॉलोइंग? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस? तो हम उसकी डेप्रिसिएशन वर्कआउट कर लेते हैं। गेटिंग इट गाइस? क्लियर है? Yes, sir. तो इट विल बी सिंपल कि 2019 टिल 20 क्या हुआ होगा, पहले साल तो कॉस्ट पे लगता है तो 6000 का 15% निकाल लिया होगा पहले साल में। तो पीपल गॉट दिस, कॉस्ट इज 6000 और फिर हमने 15% पहले साल का निकाल लिया, तो पहले साल की डेप्रीसिएशन हो गई $900। ओके, डेप्रीसिएशन आ गई, सही है ये? होप स्टूडेंट्स आर गेटिंग इट। और फिर सेकेंड ईयर में क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 20 से 2021 के ईयर में, तो आपने कॉस्ट में से नेट बुक वैल्यू डेप्रीसिएशन माइनस करी, तो आपके पास आ गया सर 5100। उस पर आपने परसेंटेज अप्लाई करी तो सेकेंड ईयर की डेप्रीसिएशन आ गई, दैट इज बेसिकली $765। गॉट इट? क्लियर? नो प्रॉब्लम, नो कंसर्न, राइट? नो इश्यूज फॉलोइंग। और थर्ड ईयर में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी नहीं है, ठीक है? सही है। जो डिस्पोजल था जो 2019 से लिया तो 19 टिल 20 की चार्ज करी, एक साल की 900 आ गई और सेकेंड ईयर की 765 डेप्रिसिएशन आ गई। स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं? क्लियर है? अब सर आप ये कर क्यों रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है? ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि हेल्प भी करेगा, आगे काम भी आएगा। इससे दो तीन चीजें हम गेन और लॉस भी निकाल सकते हैं, करना जरूरी था। आप किसी भी मेथड से करें, या आपको करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपके गेन और लॉस निकालना है। वी हैव टू मेक इनकम स्टेटमेंट आगे, गेटिंग इट? तो वो गेन और लॉस निकालना पड़ेगा। तो कहने करा इसलिए है ताकि हम डिस्पोजल की नेट बुक करें निकाल सकें, क्योंकि इस साल इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तो हम ये कहेंगे जो डिस्पोजल था उसकी कॉस्ट थी $6000 और उसकी दो साल की डेप्रीसिएशन जो है वो मैं माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये जो डिस्पोजल है उसकी इस साल की नेटबुक वैल्यू आ जाएगी, जिसपे कोई भी डेप्रीसिएशन इस साल चार्ज नहीं होगी, जो कि है करंट ईयर 21 से 22। सब फॉलो कर रहे हैं? तो मतलब 4335 जो नेटबुक वैल्यू है वो इस डिस्पोजल वाले एसेट की नेटबुक वैल्यू है। फॉलो कर रहे हो? लाइबा क्लियर है? एवरीवन गेटिंग इट? जी सर। ये तो Yes. समझने की बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, फिर रिपीट कर देता हूँ। 8795 जो साल के ओपनिंग बैलेंस है नेटबुक वैल्यू का, उसके अंदर सर 4335 जो नेटबुक वैल्यू है वो डिस्पोजल वाले एसेट की नेटबुक वैल्यू है, जो कि इस साल डिस्पोज हो रहा है, जिसकी हम डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो जो बचता है एसेट उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो कि बन जाएगा 8795 माइनस 4335, जो भी अमाउंट आएगी उस नेटबुक वैल्यू पे आपने डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, और वही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 4460। एज आई सेड के अदर और भी मेथड्स हैं करने के, बट ये कर लेंगे तो आगे वाले पार्ट में भी हेल्प होगी। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, किसी तरह के से भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 669 आ रहा है मेरे पास, तो ये जो है 1380 प्लस 669 जो है वो 2049 बनाता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, फॉलो करिएगा बहुत केयरफुली। इन दोनों डेप्रीसिएशंस को ऐड कर देंगे, ठीक है जी। मैं बॉक्स ही बना देता हूँ क्योंकि ये इस साल का चार्ज ऑफ डेप्रीसिएशन है, ठीक है? गेटिंग इट क्लियर? अब यहाँ पर स्पेस का मसला रहा, आप वर्किंग और शो कर दीजिएगा। हम इन दोनों को ऐड करके यहाँ शो कर देते हैं, यहीं शो कर देते हैं कि डेप्रीसिएशन चार्ज, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर कितनी हो गई। अगर आपने ये वैल्यू करेक्ट निकाली तो आगे भी आपके मार्क्स मिलते रहेंगे आपको, ठीक है? क्योंकि आगे भी लिखना होगा ना ये। लेट मी नो, यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 669 प्लस 1380, तो ये आ गया 2049। ओके, गॉट दिस क्लियर? अभी तक Yes. कुछ भी थ्योरी नहीं आई जी है, सर। ऑल न्यूमेरिक्स है, विच मीन्स अभी तक जितना भी हमने पार्ट करा है न्यूमेरिक्स है, बट हम थ्योरी भी इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है? थ्योरी एंड एनालिसिस। तो 2049 मेरा आंसर आ गया, विच मीन्स कि मुझे कितने मार्क्स मिल गए? 3 4 5 6 7 and 8 9 मार्क्स मिल गए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। गॉट दिस क्लियर ऑन दिस? कोई प्रॉब्लम, एनी इश्यूज? No issues. ठीक है, जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। 9 मार्क्स हमने कर लिए, ऑलमोस्ट हम 50% ऑफ द क्वेश्चन करने वाले। मूव फॉरवर्ड। कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न डिस्कस करना है? डन? Yes sir. Okay. Next we move forward. So we have to make income statement for 10 marks. तो 19 marks हमें यहीं तक मिल जाएंगे if we do it properly. तो हमें 10 marks के लिए workings की space भी given है। Okay students, working की जो है वो space भी given है, और हमने जो है वो 10 marks के लिए income statement draw करनी है। तो let's get started.
विथ ऑल दी एडजस्टमेंट्स। यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में सिक्योर रखना है कि सर ये सारी इंफॉर्मेशन थी और हमने ये सारे जो है वो इंफॉर्मेशन को माइंड में बैक ऑफ द माइंड रखें ताकि इजीली कर सके। तो लेट्स स्टार्ट विथ थिंग्स और फिर इसमें हम एडिंग करते रहेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो इन्वेंट्री है एट द एंड ऑफ द ईयर, इन्वेंट्री जो थी क्लोजिंग, उसमें डैमेज गुड्स भी शामिल है। तो ये इसने एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करा आपसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, कि आपको इन्वेंट्री किस पे नेट बुक नेट रिलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट पे वैल्यू करनी होती है। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें डैमेज गुड्स हैं, इसकी एडजस्टमेंट है वो भी देखते हैं अभी। ठीक है, एवरीवन गेटिंग इट? क्लियर है बात? हेलो, सही है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो एडजस्टमेंट है हम देखते हैं, बट स्टार्ट किससे करते हैं? ऑलवेज रिमेंबर रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे इनकम स्टेटमेंट को। तो हेयर वी गो, रेवेन्यू में क्या आ जाएगा? सारी टाइप्स की सेल्स आ जाएंगी। तो सर हमारे पास क्रेडिट सेल्स हैं कितनी? 146,850 हमारे पास ये सेल्स है। ठीक है, 146। जो वर्किंग हो सके वो यहीं शो कर दें, बाकी जो लंबी वर्किंग हो वो वर्किंग्स वाले कॉलम में शो कर दीजिएगा। ठीक है, गेटिंग इट? यहाँ शो कर देंगे, सही है। तो 146,850, तो ये क्रेडिट सेल्स हो गई। और फिर हमारे पास कैश सेल्स भी थी जो कि ये हो जाएंगी। तो कैश सेल्स और इनको ऐड करते हैं, सब फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एवरीवन गेटिंग इट? क्लियर है बात? जी सर। यस। ठीक है, एक सेकेंड दीगा। अच्छा, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे? 146,850, सॉरी कैश सेल्स तो ये है ना, माय बैड, वो तो बैंक उतनी बैंक हुई है उसमें से। ठीक है, ये फिगर नहीं लीगा, सही है, ये फिगर लेंगे। ठीक है, 15,280 प्लस जो क्रेडिट सेल्स है। हाँ बस सिंपल है, क्रेडिट सेल्स ली 146,850, क्रेडिट सेल्स लेनी। ठीक है, गेटिंग इट? और कैश सेल्स कितनी है जो मेंशन है? 15,280। मैं भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैश सेल्स, तो वो मिस्टेक हो जाएगी, आपने समझना जरूरी है। 146,850, 15,280, तो दिस इज कमिंग एज 1,162। मेक श्योर कैलकुलेटिंग वैल्यूज चेक कर लें, अगर मैंने कोई मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप लोग जरूर चेक कर लें इसको। ठीक है, ये डॉलर वैल्यू आ गई, डॉलर वैल्यू आ गई। हाँ, अंडरस्टैंडिंग ये करनी है कि ये जो है वो टोटल कैश सेल्स है 15,280, और उसमें से कुछ पार्ट जो है वो बैंक में कर दिया, सारी कैश सेल्स नहीं करी, कुछ पार्ट बैंक में करा है। गेटिंग इट? क्लियर है लाइबा? एवरीवन गेटिंग इट? श्योर? अंडरस्टैंडिंग? क्लियर। और क्रेडिट सेल्स की वैल्यू तो जो आपकी आएगी आप वही लोगे। तो आपको यहाँ पर मार्क्स मिलते रहेंगे, अगर पीछे भी आपने कुछ मिस्टेक्स किए तो आपको कैरी फॉरवर्ड होकर मार्क्स मिलते रहेंगे। एवरीवन गॉट इट? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? जी सर। फिर जल्दी से चेक कर लें कोई सेल्स रिटर्न तो नहीं है। आई थिंक कोई भी सेल्स रिटर्न नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम कह देंगे सर कॉस्ट ऑफ सेल्स, रेवेन्यू के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। आई डोंट थिंक उसमें कोई इशू है, वो सही, वो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री से बेहतर है कि आप पूरा नाम लिख दें कि इन्वेंट्री एट, साल खत्म हो रहा है 30 जून को, तो साल शुरू होता है 1 जुलाई, तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 2021 आप लिखें। गेटिंग इट गाइस? क्लियर है? ओपनिंग इन्वेंट्री 23,600 है, इसमें कोई इशू नहीं है, तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 23,600 इज द ओपनिंग इन्वेंट्री। और इसके मार्क्स भी नहीं है, ठीक है, इसके 0 मार्क्स हैं, ये लिखें क्योंकि ये डायरेक्ट कॉपी हो रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास जो एडजस्टमेंट आएगी वो इसी में आएगी कि सर हमने परचेजेस में एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि हमने परचेजेस तो निकाली हैं। क्रेडिट परचेजेस थी 82,375, सब फॉलो करें। 82,375 क्रेडिट परचेजेस हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि यहाँ पर एक एडजस्टमेंट थी कि हमने जो परचेज जो गुड्स हैं उसकी भी हमने जो है ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बैक ऑफ द माइंड याद होना चाहिए कि ही हैड आल्सो टेकन गुड्स फॉर हिज ओन यूज विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ $350 आफ्टर अ मार्कअप ऑफ 25%। ठीक है, तो हमने ये भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हम इसकी एक वर्किंग एडजस्टमेंट बना लेते हैं कि परचेजेस एंड वर्किंग नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर वो हो नहीं पाएगा। तो फिर वर्किंग नंबर 1 हमने यहाँ लिखा, इस तरह आपने प्रॉपर वर्किंग शो करनी है एग्जामिनर को कि ये क्या है कि वो कह रहा है कि 350 उसकी सेलिंग प्राइस थी और मार्कअप उस पर लगा हुआ है 25% का। तो आपको मार्कअप का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मार्कअप का फॉर्मूला जो है बहुत सिंपल है, कि ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो आसान रहेगा। C1+R, कोई भी आंसर आज तक गलत नहीं हो मेरे इससे, C1+R इज इक्वल्स टू S यूज करेंगे। हमें कॉस्ट चाहिए बिकॉज हम यहाँ पर परचेज को कॉस्ट पे लिख रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पर परचेजेस को कॉस्ट पे लिखेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या थी? 350। तो 350 और फिर ये जो है डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल्स टू $350 सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 + 25%, जो कि इसका मार्कअप है। गॉट इट? क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम? नो सर।
तो ये मेरे पास आ रहा है 280, और हम सिंपली यहाँ कह देंगे कि भाई जो परचेज है, क्योंकि कोई भी कैश परचेज नहीं है मेरे ख्याल से, या उसने मेंशन नहीं करा है, इसका मतलब कोई भी कैश परचेज नहीं है, सारी क्रेडिट परचेज हैं, जो कि सर 82,375 है। तो बाकी आप ये जो मैंने कहा कि जो यहाँ पर हो सके वो यहीं शो कर दें कि 82,375 में से $280 जो एडजस्टमेंट करी है वो हम यहीं शो कर रहे हैं कि वो यहीं पर माइनस होके हो जाएगी। तो 82,375 माइनस 280, तो परचेजेस भी आ गई डिफरेंट 82,095। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो इसके 2 मार्क्स हो जाएंगे। पीपल गॉट इट क्लियर? नो इश्यूज? सही है। और उसके बाद जो है एनी कंसर्न, एनी क्वेश्चन, फिर आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए हमने वर्किंग करनी होगी। हमने पढ़ा कि ऊपर एक एडजस्टमेंट है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री एट 30 जून हो जाएगी 2022। तो उसके ऊपर हम बना लेंगे एक वापस स्टार कि भाई इसकी वर्किंग जो है वो भी हम नीचे करके दिखा रहे हैं एग्जामिनर को। तो ये वर्किंग नंबर हेलो, आगे बढ़े। अब इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि वी अंडरस्टैंड कि सर इन जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें एक डैमेज गुड्स हैं जो कि कॉस्ट कर रहे हैं $1,800, बट उनको रिपेयर्स की ज़रूरत है, कॉस्टिंग $350। द गुड्स कुड देन बी सोल्ड फॉर 30% लेस देन द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ 2250। ओके, the goods that can be sold for 30% less than the normal selling price of 2250। clear following everyone? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हेलो। Yes. तो इसमें क्या होता है कि हम देखेंगे कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट है $1,800, और एनआरवी क्या है, इन दोनों में से लोअर जो होगी वो लेंगे। एनआरवी होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू के एस्टिमेटेड सेलिंग माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है, और माइनस ऑल टाइप्स ऑफ रिपेयर्स पैकेजिंग कॉस्ट। ठीक है, सब फॉलो कर रहे हैं? एवरीवन गेटिंग जी इट? सर। क्लियर है? सब फॉलो करें, राइट? ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमें वो कह रहा है कि गुड्स कैन देन सोल्ड बी 30% लेस देन द नॉर्मल, ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। तो हम निकाल लेते हैं कि 30% लेस पे क्या सेलिंग प्राइस होगी। तो इसका 70% निकाल लिया, 30% लेस कर दिया। समझे आप लोग? समझ आ रही है बात? तो हम इसको सेल कर सकेंगे 1575 का, और अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग के एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से हम माइनस कर देंगे रिपेयर्स को। तो अब देखते हैं एनआरवी क्या आ रही है, 1575 माइनस 350, तो 1225 आ रहा है। तो लोअर क्या हुआ? लोअर हो गया एनआरवी। इसका मतलब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, वो 1800 का रिकॉर्ड पे आया हुआ है, उसको रिमूव करके हमें ओरिजिनल वैल्यू डालनी पड़ेगी। सब फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, ये सब वर्किंग नीचे करनी थी, बाय मिस्टेक मैंने ऊपर कर दी है। ठीक है, ये आपको नीचे करनी चाहिए वर्किंग। सही है, बट क्लियर हो गया? समझ में तो आ गया? ऊपर एडजस्टमेंट थी, मैंने समझाने के लिए कर दिया। एवरीवन गॉट इट? सही है। तो हम ये करेंगे कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है सर 21,400, ये नहीं आएगी क्योंकि ये डिफरेंट है। फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। 21,400 में से पहले आप 1800 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स। सबको बात समझ आ रही है? और इसके अंदर 1800 पे वैल्यू नहीं होगी उसकी, उसकी वैल्यू जो अब आएगी वो आएगी 1225 पर। तो इसके अंदर हम 1225 को ऐड कर देंगे। गॉट इट पीपल? क्लियर? अंडरस्टूड? तो चेक Yes कर sir. लेते हैं वैल्यू। 1800 प्लस 1225, सही है। तो 20,825 क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है, और होप ये करेक्ट भी होगी। सही है, तो 20,825 जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है। अगर फिर एक्सप्लेन करना है तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम अगेन। ओके, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पर वो आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। दैट इज इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट लोअर, या तो कॉस्ट पे या एनआरवी पे, जो भी लोअर होगा। तो कॉस्ट से पता थी कॉस्ट 1800 है, तो 1800 उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सही है, 30 जून के अंदर इंक्लूडेड है इन्वेंट्री। मतलब ये 21,900 जो 21,400 था, इसके अंदर इन्वेंट्री वो इंक्लूडेड थी 1800 की। हमने इसकी एनआरवी निकाली, तो हमने देखा एनआरवी कैसे निकालते हैं कि एनआरवी का फॉर्मूला बताना चाहिए। एनआरवी का फॉर्मूला होता है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, या रिपेयर पैकेजिंग कॉस्ट, बल्कि रिपेयर्स और पैकेजिंग कॉस्ट लिख देते हैं। रिपेयर्स क्योंकि डैमेज है ना, तो रिपेयर करना पड़ेगा, पैकेजिंग चेंज करनी पड़ेगी। गेटिंग इट स्टूडेंट्स? क्लियर है? तो क्या होगा कि हमने देखा कि वो कह रहा है कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस उनकी ये है, 30% लेस होगा। अब हमने निकाला कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। सर सेलिंग प्राइस ये है, और वो खुद बता रहा है कि सर इतने रिपेयर्स होंगे, $350 के रिपेयर हैं। वो माइनस करा तो 1225 आ गया, जो कि स्मॉलर वैल्यू है, लोअर है 1800 से।
तो हमने उसको 1800 को रिमूव करके 1225 पे वैल्यू कर लिया। सबको बात समझ आ गई है? क्लियर है? हेलो, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट इजीली। और ये तकरीबन आई थिंक 5 मार्क्स तो मिल ही गए, 1 2 3 4 5 हाफ मार्क्स तो यहाँ पर मिल ही जाने चाहिए, क्योंकि मेन एडजस्टमेंट्स तो यहीं पर हो गई हैं। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस को ऐड कर लें और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई सर 84,870 इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर वाली, मे कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 77,260 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है अभी तक। ठीक है, एवरीवन गॉट इट? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आपने यहाँ पर स्टॉप करना होता है और देखना होता है कोई इनकम तो नहीं है, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कोई भी ऐसी इनकम तो नहीं है, या डाउटफुल डेट्स हो। अभी इस क्वेश्चन में डाउटफुल डेट्स नहीं, तो उन्होंने आपको ये लीनियंसी दी हुई है कि डाउटफुल डेट्स नहीं है। ठीक है, गेटिंग इट? तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई डेप्रीसिएशन जो था उसमें हमें गेन लॉस तो नहीं हुआ। सब फॉलो कर रहे हैं? क्लियर है बात? सही है? जी हेलो सर. स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो यहाँ पर हम जल्दी से एक छोटा सा टी अकाउंट बना लेते हैं, मेरे ख्याल से तो वी हैव स्पेस, तो वो हो जाएगा, बट स्टिल हम यहीं पर बना लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो डिस्पोजल अकाउंट हम बना रहे हैं, तो डिस्पोजल का अकाउंट है। कोई प्रॉब्लम किसी को? डिस्पोजल अकाउंट आ गया ये सर। यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे जो कि है कॉस्ट है, क्या कॉस्ट है? $6,000 कॉस्ट है। ठीक है जी। डेप्रीसिएशन निकाल चुके हैं सर। डेप्रीसिएशन जो थी वो इसकी 900 और 765, 2 साल की डेप्रीसिएशन ऐड कर दें। फॉर्मेट आना चाहिए, सही है। 1665 जो है उसकी डेप्रीसिएशन आ गई। कितने पैसों पे बेचा? डिस्पोजल की प्रोसीड्स हैं मैंने कहा कि हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है, तो वो यहाँ पर आ गई। सेल ऑफ मशीनरी $4,000 की यहाँ लिख देते हैं। अब कर लें, मेरे ख्याल से लॉस ही आ रहा है। यस, लॉस आ रहा है, सही ना? यहाँ पर गेन आता है। एक काम करते हैं, हमें वर्किंग्स तो करनी है और हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सेकंड वेट करें ताकि प्रॉपर जो है वो आपको याद हो जाए कि किस तरह हमने ये बनाने अकाउंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम ये कर लेते हैं, 2 वर्किंग्स कर ली और वर्किंग यहाँ शो कर देते हैं एग्जामिनर को। ओके, ये पीछे होके काफ़ी, तो ये हो जाएगा डिस्पोजल अकाउंट। सही है? पता होना चाहिए, डिस्पोजल अकाउंट भी लर्न कर लें कैसे बनता है। फॉलो कर रहे हैं? हेलो, Yeah. डिस्पोजल अकाउंट में कॉस्ट आती है, यहाँ पर कॉस्ट है $6,000, तो कॉस्ट आ गई। फिर आपने जो डिस्पोजल की प्रोसीड्स करी वो यहाँ आती हैं, बैंक में जो सेल करा तो आपने इसको ₹4,000 का सेल करा है। ठीक है, और जो डेप्रीसिएशन है उसकी पूरी डेप्रीसिएशन भी क्रेडिट साइड पर आती है। ये जगह फिक्स्ड है, ठीक है? तो क्या वैल्यू थी? 900 प्लस 765, तो वो बन रहा था 1665। ठीक है, तो ये आ गया। तो याद रखें कि लॉस जो है वो यहाँ शो होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल। तो इस पर लॉस हो रहा है, कोई भी गेन नहीं है, लेकिन अगर अभी गेन हो जाए तो गेन यहाँ शो होगा, तो वो इनकम बन जाएगी। ठीक है, गॉट दैट? क्लियर है? याद रहेगी बात? तो अभी तो लॉस ही हो रहा है, 6,000 माइनस 4,000, सो वी गॉट इट एज बेसिकली, फॉलो करें, 335 का लॉस हो गया डिस्पोजल पे। अंडरस्टूड और नॉट? Yes. सही है जी। तो अब हमारे पास कोई इनकम है नहीं सर, तो आगे बढ़ते हैं सर, डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्सपेंस चले जाते हैं। तो लेस एक्सपेंसेस पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपने बिल्कुल केयरफुल रहना है। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप चले तो बेहतर रहेगा। तो जैसे क्योंकि आपने ये वर्कआउट कर लिया तो जाके भूल ना जाए, अक्सर याद रहता है बाद में भूल जाते हैं। तो भूलने से बेहतर है कि आप पहले ही लिख दें कि भाई लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है और उसकी वर्किंग नंबर 3 है, जो कि आपने दिखा दी है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल वर्किंग नंबर 3, और ये 335 का जो है हमें लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है। गेटिंग इट? क्योंकि डेफिनेटली इसका 1 मार्क तो होगा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट इट? Yes. भैया इसको आप कह दें कि वर्किंग नंबर 3 है। सही है, अब आ जाए बाकी एक्सपेंसेस पे। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। तो पहले वेजेस कर लेते हैं। सही है, वेजेस, अच्छा पहले ये देख लें। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का टी अकाउंट बनेगा और रेंट का टी अकाउंट बनेगा, बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और रेंट को छोड़ के बाकी हम करते हैं। तो हम पहले वेजेस कर लेते हैं, बिकॉज वेजेस इज नॉट डिफिकल्ट। तो वेजेस आपने लिखा है यहाँ पर, फॉलो करें स्टूडेंट्स, वेजेस आपने लिखा और वेजेस की आपने एडजस्टमेंट यहीं पर कर दी, क्योंकि आपको पता है कि वेजेस आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट?
हमें पता है कि वेजेस कितनी है सर, एक तो वेजेस ये हैं 2840 जो कैश में वेजेस पे की गई हैं, और एक वेजेस सर ये वाली हैं जो कि 36,240 है। सही है, क्लियर है बात? सो 36,240 प्लस, समझ आ रही बात, 36,240 प्लस 2,840 एज द अदर कैश वेजेस, सब फॉलो कर रहे हैं? तो ये दोनों ऐड करके हमारी वैल्यू बन जाएगी। सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है बात? जी सर। तो जल्दी से 36,240 प्लस 2,840, 39,080 जो है वो उसकी कैश वेजेस आ गई सर, 39,080। ठीक है, फिर आप जल्दी से डेप्रीसिएशन भी लिख लें, क्योंकि आपको पता है आपने सारी डेप्रीसिएशन वर्कआउट कर लिया है। तो डेप्रीसिएशन अगर आपने करा तो आप लिख सकते हैं पार्ट डी, और इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप सर फुल मार्क्स के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको यकीन है पार्ट डी तो आप लिख दें डेप्रीसिएशन फ्रॉम पार्ट डी आ जाएगी, वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। क्या है, 2049 डेप्रीसिएशन है, वो एक्सपेंस भी लिख दें। ठीक है, तो जो जो आपको आता है, कोई इसमें वो नहीं है कि आप इस फॉर्म में लिखें, जल्दी जल्दी आपने लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और रेंट का हम वर्किंग करेंगे, तो इनको हम तो अब फिर जनरल एक्सपेंसेस हैं वो भी लिख दें, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसकी, तो 18,590 आप जनरल एक्सपेंसेस फटाफट लिख दें। गेटिंग इट स्टूडेंट्स, क्लियर है कि किस तरह आपने जल्दी जल्दी अपने एक्सपेंसेस लिखने कि जिनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 18,590 और जनरल एक्सपेंस का कोई मार्क भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? मार्क्स किसके हैं? जहाँ पर एडजस्टमेंट हो रही होगी, जैसे कि वेजेस हो गया, ठीक है, वेजेस के मार्क्स हैं, डेप्रिसिएशन के भी कोई मार्क्स नहीं है। इसका मतलब इससे ये जाहिर होता है कि डेप्रिसिएशन के बस यहीं पर 3 मार्क्स उसने दे दिए, तो वो आपको और मार्क्स नहीं देगा, चाहे आपकी जो भी वैल्यू यहाँ पर, वो फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने वहाँ गलत निकाली तो वहीं पर मार्क्स डिडक्ट हो गए, यहाँ पर वो आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट कर रहा है। सही है, तो हमारे जनरल एक्सपेंसेस हो गए। उसके बाद जो है हमने मशीनरी तो हमने ली, वो तो हो गया, जनरल एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन सब लिख दिया बस। ठीक है, और कुछ है नहीं, मशीनरी तो एसेट होता है तो वो तो आएगा नहीं यहाँ पर। ठीक है ना, तो बस अब रह गया कि रेंट और इलेक्ट्रिसिटी रह गया, जिसके लिए हम वर्किंग करेंगे। तो हमेशा याद रखें कि जब भी रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का, जब भी प्रीपेड और एक्रूड गिवन हो तो टी अकाउंट्स बना लें, तो आपको इजी हो जाएगा। सही है, वर्किंग नंबर 4 कह देते हैं और वर्किंग नंबर 5 कह देते हैं। हमारा ऑलमोस्ट 19 मार्क्स न्यूमेरिक्स कंप्लीट हो गए। सही है, तो ये 19 मार्क्स का आ जाएगा, सब फॉलो कर रहे हैं राइट? ड्राइंग्स इसमें आती नहीं है, ड्राइंग्स बैलेंस यस। शीट में आती है, तो ड्राइंग्स का हमें कुछ करना नहीं है। और भी कोई क्वेश्चन तो डिस्कस करें, पूछे। सही है, तो हम ये बना लेते हैं रेंट का अकाउंट। ओके, दोनों एक्सपेंस है, तो ये रेंट अकाउंट बन गया, रेंट का एक्सपेंस अकाउंट बन गया। तो रेंट का जो अकाउंट है वो अगर बात करें तो रेंट पेड इन एडवांस है, मतलब प्रीपेड है, तो आपका ये करंट एसेट है एक तरह से रेंट, और दोनों टाइम में वही है। तो 950 से स्टार्ट हुआ 1100 पे, तो आप सिंपल रखेंगे कि सर 950 बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये पेड इन एडवांस है, तो एक्सपेंस अगर पेड इन एडवांस हो तो आपके लिए एसेट बन जाता है, और साल के आखिर में भी वो बैलेंस ब्रॉड पॉजिटिव ही है। तो 950 ओपनिंग आ गया। देखिए मेन मिस्टेक यही होगी कि बच्चे जो है ना वो ओपनिंग क्लोजिंग में कंफ्यूजन करेंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्रेडिट डाउन यहाँ आ गया, और आपने रेंट कितना पे करा है, सिंपल आपने रेंट पे करा है 12,250। अगर बैंक क्रेडिट कर रहा है तो रेंट अकाउंट क्या करेगा, इसको डेबिट करेगा कि भाई मेरे अकाउंट में डेबिट पे आ जाओ। तो ये आ गया बैंक, और आपने निकाल लिया फिर अपना इनकम स्टेटमेंट की फिगर। सब फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट? बस ये करना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको अकाउंटिंग वो जो हमने क्वेश्चन किया था वो याद है तो उस तरह ही है बस। ठीक है जी, तो 12,100 यहाँ पर लिख देंगे फॉर रेंट। लेट मी नो कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। आई हैव अ क्वेश्चन। या श्योर। इस क्वेश्चन के लिए टिपिकली कितना टाइम देना चाहिए पेपर में? पेपर में इस क्वेश्चन के लिए 30 मार्क्स है ना, तो 40 मिनट्स तो आप ले लें इस पे। सही है, सही है। 30 से बल ट्राई करें 30 मिनट्स में हो जाए, बट 35 to 40 मिनट्स कर सकते हैं इस पे। ठीक है, ओके। गॉट इट? क्योंकि 1 hour 45 मिनट्स हो गए ना, तो यू कैन टेक 35 मिनट्स, बट ट्राई करें प्रैक्टिस में आप इसको 30 मिनट्स में करें। देखिए अंडरस्टैंड, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग एवरी पार्ट। when you are solving you don't have to give explanation to anyone, right? I have to give you explanation okay what's happening and how. So that's why it will definitely take, all questions will take more than the marks time. Okay, जितने marks होंगे उससे ज़्यादा time लगेगा। 15 marks है, 15 marks में if I start explaining the question तो मैं solve ही कर पाऊंगा। मैं solve तो कर लूंगा, मैं तो 20 मिनट्स में solve कर लूँ। Getting it? ठीक है, got the यस। point? So explanation हो रही है, तो that's why we'll have to
बट यू व्हेन यू आर डूइंग ऐसे डू अ स्टॉप वॉच, और फिर अभी क्वेश्चंस दे रहा हूँ तो उसको 30 मैक्सिमम 30 मिनट्स लगाओ, फिर 35 मिनट्स एक्सटेंड कर लो तो नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, क्लियर? गॉट इट. इनकम स्टेटमेंट हो गया सही, 12,100. इस पे वर्किंग नंबर 4 लिख देते हैं. फिर वर्किंग नंबर 5 हो जाएगा कि रेंट अकाउंट के बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज एक्रूड, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी आपने, आपकी लाइबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम उसमें लिखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट लाइबिलिटी है कि आपने उसका पेमेंट नहीं की हुई है. गेटिंग इट? तो इलेक्ट्रिसिटी जब एक्रूड है तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा ये अकाउंट. ठीक है स्टूडेंट्स, के बैलेंस ब्रॉट डाउन will be coming here and balance carried down will be coming here. Got it? Clear? अच्छा, सम ये तो इजी है. सम क्वेश्चंस में ऑपोजिट भी होता है, फिर आपको देखना पड़ेगा. जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, ये अभी अभी तो दोनों एक्रूड एक्रूड है. कुछ अगर ये नहीं लिखे और वो कह दे कि ये प्रीपेड है और ये एक्रूड है, फिर यू हैव टू बी केयरफुल. ओके, गेटिंग इट? इसका मतलब है कि साल के शुरू में एसेट था बट साल के आखिर में लाइबिलिटी बन गई. ठीक है, अगर इसको एक्रूड कह दूं पहले और फिर इसको कहूँ प्रीपेड हो गया, साल के शुरू में लाइबिलिटी थी, फिर साल के आखिर में एसेट बन गया, एक्सपेंस. ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बी केयरफुल हियर. ओके, 420 हियर और 380 हियर. गॉट इट? और फिर ये वही कि इसको एक्सपेंस पे कर रहा है, बैंक क्रेडिट कर रहा है, तो अपने अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट में इलेक्ट्रिसिटी डेबिट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट. तो 3,680 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बैंक यहाँ पर हो गया. तो अगेन इनका जब एक्सपेंस का अकाउंट होता है तो इनकम स्टेटमेंट ऑलवेज कम ऑन क्रेडिट साइड. सो 3,680 plus 380 minus 420, I got this as 3,640, and that is our value for there. That is 3,640. And in दोनों के definitely 1 mark होंगे. ठीक है, getting it out of the 10 marks. So as I said कि don't have to कि सर ये पार्ट नहीं हुआ, ये चीज नहीं आती, यू जस्ट ट्राई टू गो फॉर मैक्सिमम मार्क्स एज मच. अगर आपको ये दोनों भी आ रहा है तो यू ट्राई टू गेट 2 marks. ये कर लोगे यू गेट 5 marks. ओके, सो डोंट हैव टू वरी के you have to get maximum marks in the accounting exam. Okay, that's how it goes. Okay, so 1 2 3 4 5 6 expense and that's it. फिर हम इसको प्रॉफिट, आई थिंक और कोई एक्सपेंस नहीं है, आप मेक श्योर रीचेक कर लेगा. अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो मोर एक्सपेंस. ठीक है, तो हियर वी गो, लेट्स चेक विद द मार्किंग स्कीम एज वेल एंड हियर वी गो, प्रॉफिट फॉर द ईयर. सो ऑलमोस्ट करेक्ट ही होना चाहिए. So profit for the year, let's do add quickly, give me an addition of all the expenses. 39,080 plus 335 plus 2,049 plus 18,590 plus 12,100 plus 3,640. So 75,794. We subtract that and 77,260 minus 75,794. I am getting profit as 1,466. The profit बहुत कम है, but still the profit is there. So that's a good sign. Okay, so here we go. अब हमें comment भी करना, उस पे comments analysis करना. So that's how you have to use more of this space. But मैंने भी explanation के लिए other page use कर लिया था. But hope everyone got this. This is working number 5. These are the values that examiner is interested in. Got it? So this should be, make sure, properly shown to the examiner. Do neat and clean working and you'll get all marks. Okay, and as I said, don't have to get the full marks, you need to get the maximum marks. Okay, so 10 out of 8, 7 is a very good marks in this. Okay, because definitely some mistake will be there. Okay, if you got depreciation wrong in the previous part, you will still, you are not losing anything here. Okay, let's check with the marking scheme, and marking scheme is also alhamdulillah 100% correct. Okay, so students need to understand, okay, 1 mark for rent, 1 mark for electricity, 1 mark for loss on disposal, 1 mark for wages, 1 mark for the final profit for the year if you get correct, and this is 5 marks, and the 5 marks for this, 1 mark for this, 2 marks for this, 1 mark for this, and 5. So that's how it becomes 10 marks. Okay, got it? Clear on this? Sure. So 19 marks are done. Okay, I think, yeah, 19 marks are done. Can you move forward quickly, theory part? Claire, should you move forward? Hello. Yeah. Yes, sir. Now comes the theory part. Okay, no, still not analysis, and still we have a 5 marks analysis question, that is part H, the last part. So let's quickly do the theory. Okay, this is called theory. Okay, so we can say 2 4 6, so 6 marks theory, 5 marks analysis, and 19 marks numerics. Okay, so here we go. This will be called theory, sir. You can read from anywhere and write down the answers. Very simple question. First, we have done it a lot of times. State 2 causes of depreciation of non-current assets. So you see, if the numerics were a lot bit tricky, numerics tricky थे, difficult थे, ज़्यादा time लग रहा था, so उन्होंने theory में आसान रख दिया. तो what you should do, you should just skim through first. ठीक है,
what you should do quickly, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, let's say you got this paper, आपने देखा पहला इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आया, ठीक है, ये सारे पार्ट्स करने हैं, सही है, आपने कहा ये थ्योरी का पार्ट है और एफ में सब जल्दी से कुछ भी लिंक नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट लिंक विद एनीथिंग, तो क्या करना है, क्विकली पेन से आपने फटाफट दो कॉजेज लिख दी, गेटिंग इट, दैट्स हाउ यू सेव योर टाइम, ओके। अब पहले थ्योरी करके आओ, न्यूमेरिक्स करके आओगे तो ऑलरेडी टाइम बहुत सारा यूज हो चुका होगा, तो बेटर है कि अगर आपको लग रहा है कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट पीछे से लिंक नहीं है, यू जस्ट स्किम थ्रू। लेट्स से कि क्वेश्चन नंबर 1 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड था, बट क्वेश्चन नंबर 4 इजी आ गया, कॉस्टिंग का आ गया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, आपने एनालिसिस शीट, तो आप पहले वो स्टार्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 लग रहा है सिर्फ रेशियोज निकालने, इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा, इजी कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क की थ्योरी आसान है, आप फटाफट 15 मिनट्स पहले वो कर लो अपने, गेटिंग इट, सो जस्ट डोंट वेस्ट टाइम फॉर द ट्रिकी पार्ट, ओके, गेटिंग इट, यू डू इट एट द एंड लेटर ऑन, सही है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्ली सेपरेट कि हमें कैसे पेपर एक अगर आ रहा है तो आपने कैसे करना है, तो जस्ट यू कैन राइट डायरेक्टली विदाउट इवन थिंकिंग कि सर वेयर एंड टेयर सही हो जाएगा, सही है। यू कैन राइट द टेक्नो ऑब्सोलेसेंस जो हमने बात की थी, या इनएडिक्वेसी वाला फैक्टर भी लिख सकते हैं, जस्ट वर्ड्स याद होने चाहिए, तो यू कैन राइट एनीथिंग, ओके। सो एनी 2 पॉइंट्स क्योंकि स्टेट करना है तो विच मीन्स नो नीड टू गिव अ स्टेटमेंट, ओके। ऑब्सोलेसेंस, ओके, वेयर एंड टेयर हो गया, you can write down usage as well के usage, the time factor मैंने बताया था, एक technological factor, okay, time factor, technological factor हमने last class में ही करा, I think, तो yeah, then what you have, explain with reference to an accounting concept in each case, so you have to explain with reference to an accounting concept in each case why a business, so again just hold on, the azan is going on, let's continue, you guys can write the answer for this, okay, just hold on for 1-2 minutes, let azan ho jaye, then we continue, okay. Okay, so let's continue. What's our concept is explain with reference to an accounting concept, okay. तो हमें उन्होंने कुछ, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, reason because you have to write down the accounting concept name and give the explanation for that, okay. So you need to be careful, you cannot write any name, okay. A business should make a provision for depreciation of non-current assets, मतलब जो हम provision for depreciation account बनाते हैं non-current assets account का, वो क्यों बनाते हैं? So it's very simple. What's the reason? What's the concept? Anyone? Matching It's concept. the matching concept, right? Because हम ये चाहते हैं कि whatever the depreciation is for the current year, वो income statement में reflect हो, और बाकी जो है वो that should not be there, only the current year. तो इसीलिए हम उस वो account बनाते हैं कि we make the provision for depreciation account as well. So that is why it will be the matching concept. You got 1 mark for this, for writing this matching concept, and the explanation will be that the depreciation for the current year of non-current assets, ठीक है, depreciation, you can write like this, depreciation for the current year of non-current assets for the current year of non-current assets should be shown in the current financial period, should be shown in the current financial period, ठीक है, तो you can write that, okay. ठीक है, should be shown in the current financial period, and therefore तो ये एक इंपॉर्टेंट होगा कि आपको डेप्रिसिएशन ऑफ द नॉन करंट एसेट है वो उसी पीरियड में शो नहीं चाहिए, और ये है कि ताकि हम कॉस्ट को मैच कर सके उसकी यूजेज, तो ये भी लिख सकते हैं आप, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस शुड बी ऑफ द, एक तो ये पॉइंट लिख सकते हैं, या दूसरा ये लिख सकते हैं कि भाई रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो है दे शुड बी ऑफ द करंट पीरियड, तो वो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी इन द करंट पीरियड, क्योंकि हम जो एसेट से बेनिफिट लेंगे वो रेवेन्यू में रिजल्ट करेगा, गेटिंग इट, जो हम नॉन करंट एसेट को यूज करेंगे उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा ना, फॉलोइंग दिस, बहुत डीप बात है कि जो हम नॉन करंट एसेट यूज कर रहे हैं, मशीनरी, व्हीकल्स और बिल्डिंग्स एंड प्लांट, तो उससे हमारे सेल्स रेवेन्यू जनरेट होगी, तो उसके जो अगेंस्ट उसकी कॉस्ट डेप्रिशिएट हो रहा है
वो उसको सेट ऑफ करेगा, तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस शुड बी मैच ऑफ द करंट ईयर। बात समझ आई? तो ये भी पॉइंट लिख सकते हैं आप, ठीक है? गॉट इट? हेलो, गॉट दिस? नो रिस्पॉन्स? गॉट इट। तो ठीक है, बस फिनिश ही हो रहा है, तो मेक श्योर थोड़ा सा attentive रहे and try to response. A business should make an adjustment for damage inventory. भाई क्यों एडजस्टमेंट करनी चाहिए for damage inventory? क्योंकि जो है हमारा जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है किसका, प्रूडेंस का, जो कहता है कि आप prudent किसी को ओवरस्टेट नहीं करो। अगर हम डैमेज इन्वेंट्री की वैल्यू कम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि भाई आपका एसेट ओवर वैल्यू हो जाएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि पॉसिबल नहीं है। गेटिंग इट? तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, कि आपका जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है कि आप एसेट्स को ओवर एस्टिमेट, जो ओवर स्टेट और अंडर स्टेट होता है वो नहीं कर सकते। कोई और पॉइंट आ रहा है? तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पर कि बिजनेस शुड मेक एडजस्टमेंट्स फॉर डैमेज इन्वेंट्री बिकॉज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एसेट्स जो हैं, एसेट्स सच एज इन्वेंट्री, शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। सही है, शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। तो आपने यहाँ पर वो रीजन लिखना होगा कि एसेट्स सच एज इन्वेंट्री शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। ठीक है, एसेट्स सच एज इन्वेंट्री शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड and should reflect its true and fair value and should reflect, ये आप आगे जाके A2 में पढ़ेंगे कि true and fair value क्या होती है, तो बेहतर है कि अभी से लिख लें। should reflect a true and fair value in the financial statements. okay? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? समझ आ गई बात? यस। इसमें अकाउंट मैचिंग कॉन्सेप्ट सही नहीं रहेगा बिकॉज डैमेज इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं और बिजनेस एंटिटी और वो सब भी इससे मैच नहीं करे, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ही है। तो मेक श्योर करें कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज कर लें, रिसेंट पेपर्स में काफी पूछ रहा है वो। सही है, किसी भी तरह से MCQs में पूछ लेगा या क्वेश्चन फॉर्म में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। शुड आई मूव फॉरवर्ड? फिर लास्ट पार्ट है, ये थ्योरी हो गया, आप ये याद करके भी लिख सकते हैं। ये जो है एनालिसिस पार्ट है, जो कि आपने खुद ही उसी वक्त एग्जाम में डिटरमाइन करके लिखना है कि अब इसको आपने अपनी सिचुएशन में पुट करना है। यू हैव टू थिंक लाइक रीस, कि रीस हैज बीन थिंकिंग ऑफ मेंटेनिंग अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रीस ये थिंक कर रहे हैं। अच्छा, ये 7 मार्क्स से भी आता है, 5 मार्क्स का, तो अच्छी बात है, थोड़ा कम ही है। कि रीस हैज बीन थिंकिंग ऑफ द मेंटेनिंग अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो ये है कि एडवाइस रीज वेदर और नॉट ही शुड मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या होना चाहिए कि पहले हम बात करेंगे, इसमें 5 मार्क्स है, अपने एडवाइस करनी है, तो 1 मार्क इज फॉर एडवाइस और 2 आपने जो है बाकी उसमें फेवर में लिखने और डिसफेवर में लिखने। तो अगर हम कहते हैं कि रीस, फॉलो करें, एवरीवन कैन हियर मी राइट, गेटिंग इट? जी सर। कि रीस जो है, रीस शुड मेंटेन, अगर आप पहले कह रहे हैं कि रीस शुड मेंटेन फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो क्या होगा? सीरीज शुड मेंटेन फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आपने सीधे क्वेश्चन से हेल्प ली। तो अच्छा, मेक श्योर कि प्रॉपर इसको राइटिंग में और सब उसमें कि ताकि उसको क्लियरली नजर आए कि रीज शुड मेक अ फुल सेट ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिकॉज इट विल हेल्प इन, किस तरह हेल्प करेगा? जाहिर सी बात है, पहले डिस्कस करते हैं फिर लिख लेंगे। अगर फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा तो ये जो अभी प्रॉब्लम्स हुई हैं कि वेजेस और कैश नहीं मिल रही थी, फिर क्लोजिंग अमाउंट्स नहीं पता उसको, डेप्रीसिएशन की, तो ही विल हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट वैल्यूज। क्या कहेंगे कि इसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट रिसोर्सेज होंगी अपने बिजनेस के वैल्यूज के लिए, बुक्स के लिए, एडजस्टमेंट्स के लिए। गेटिंग इट? तो इसमें जो है उसको सारी इनकम का पता होगा, सारे एक्सपेंडिचर का पता होगा। अभी कहीं कहीं डिफरेंट जगह से हम निकाल रहे हैं, हम अपनी एक्सपर्टीज यूज करके हम इसको हेल्प आउट कर रहे हैं। जब फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाएगा तो कंप्लीट वेल मेंटेन्ड होगा और पूरा कंट्रोल होगा उसके पास फिर ऑन ऑल थिंग्स एंड ही कैन मेक डिसीजंस बेटर एज वेल, राइट? गेटिंग इट? सही है, समझ आई जी बात? सर। तो यस। आपने इसी पॉइंट को, 1-2 पॉइंट्स होंगे इसमें, तो आपने इसी पॉइंट्स को बेहतर इंप्रूव करके लिखना है कि रीज शुड मेंटेन फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिकॉज it will help him managing the business properly. It will help him managing the business properly. It will help him managing the business properly with full control. ये भी लिख सकते हैं। with full control अच्छा वर्ड नहीं है,
देखें ये थोड़ा सा आपने खुद ही विद कंप्लीट कंट्रोल, सही है, ये बेहतर वर्ड है एग्जाम, क्योंकि वो ब्रिटिश है तो आपने जो है ना वो अच्छे वर्ड यूज करना है, फुल तो यहाँ पर चल जाएगा, वहाँ नहीं चलेगा। तो विद कंप्लीट कंट्रोल, ओके, बिकॉज इट विल हेल्प हिम मैनेजिंग द बिजनेस प्रॉपर्ली विद कंप्लीट कंट्रोल and helps him and will help him smooth या aid the will help him aid his decision making as well. It will help him managing the business properly with complete control and complete control and information related to and access, हाँ ये बेहतर है कि and access to, अब जो मैंने पॉइंट्स लिखा उसी को मैं बेहतर वर्डिंग में लिख रहा हूँ, and access to information and access to complete इंफॉर्मेशन, ये इनफ है, 2 मार्क्स के लिए इनफ है, ये 2 मार्क्स है, मैं भी मार्क कर दूंगा। एंड एक्सेस टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन related to incomes and expenditure, related to all incomes and expenditure, all income and expenditure, resulting in better decision making। ओके, तो इस तरह एक प्रॉपर स्टेटमेंट हो गई, रिजल्टिंग इन बेटर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो आपने ये 3-4 लाइन्स 4-5 लाइन्स यूज करी, आपको ये 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि 2 मार्क्स आपने उसको फेवर में लिखने। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए हो गया, सही है। फिर बाकी 2 मार्क्स लिखेंगे कि आप दूसरे वर्ड यूज करें, इस तरह थोड़ा सा जो मैं कुछ वर्ड्स याद रखता हूँ, तो ऑन द कॉन्ट्ररी लिख लें, हाउएवर लिख लें, या नेवरथलेस, या जैसे बेहतर है कि ऑन द कॉन्ट्ररी और ऑन द अदर साइड। ऑन द कॉन्ट्ररी हम ये, जैसे मैंने कहा कि आपको हमेशा याद होना चाहिए कि आपकी वैल्यूज क्या है, तो ये प्रॉफिट ऑलरेडी कम है, अगर ये फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखेगा, क्योंकि ये सोल ट्रेडर है, जरूरी नहीं है कि क्योंकि रीस है ना ये सोल ट्रेडर है, क्योंकि यहाँ लिखा भी है ऊपर। तो मैंने कहा कि हर चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है क्वेश्चन के अंदर, तो उसने मेंशन किया है, जैसे मैंने सारी बैक ऑफ द माइंड इन्फॉर्मेशन में रख लेता हूँ फिर, कि उसने मेंशन किया हुआ है कि रीस जो है सोल ट्रेडर है, वो फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन कर सकता, तो कॉस्ट आएगी, इसको किसी को हायर करना पड़ जाए। इसी वजह आप एक्सपेंड करते हैं, आपके पास सब काम आप नहीं कर सकते, वो कुछ चीज़ कोई एक डिपार्टमेंट देख रहा होगा, तो ऑन द कॉन्ट्ररी रीस क्या आएगा, इसकी कॉस्ट होगी कि इफ मेंटेनिंग जो है वो कि फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्या होगा कि वो उसकी स्किल्स, उसको स्किल्स रिक्वायर होंगे, उसके पास स्किल्स नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, तो जो है ना वो एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑन द कॉन्ट्ररी ये लिखेंगे कि मेंटेनिंग, ऑन द कॉन्ट्ररी मेंटेनिंग फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सब फॉलो करें, ऑन द कॉन्ट्ररी मेंटेनिंग फुल सेट ऑफ accounting records, hello, getting it guys, मैं इतनी मेहनत से maintaining full set of accounting जी सर। records will Yes. require time and effort, will require time and effort, and Reese might not have the skills for managing it, and Reese might not have the skills, or ability, और ये मैं आपके साथ लिख रहा हूँ, पहले मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, हैव द स्किल्स और एबिलिटी, रीस माइट नॉट हैव द स्किल्स और एबिलिटी टू मैनेज इट, और इसको आपने सपोर्ट करना है ऐसे ऑलरेडी। अब ये थोड़ा सा मैंने इसको और अच्छा पॉइंट कर लिया, बट मैं फिनिश करने के लिए, ऑलरेडी हिज प्रॉफिट्स आर लो, ऑलरेडी हिज प्रॉफिट्स आर लो, देयरफॉर कॉस्ट or expenditure might increase, cost or expenditure might increase, cost or expenditure might increase for maintaining complete set of, might increase for maintaining complete set of accounting records, for maintaining the records, for maintaining accounting records, further by reducing more profitability, for maintaining accounting records resulting in reduced profitability, resulting in reduced profitability। इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा। ये 2 मार्क्स हो गए। और आखिर में एडवाइस देना मत भूलिएगा, मेरे हिसाब से जो मैं एडवाइस दूंगा कि इसको नहीं करना चाहिए, अभी जैसा चल रहा है करता रहे, लेकिन वो बेहतर भी नहीं है एज एन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर भी नहीं है, बट आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक अभी जो है मैं येस या नो लिख देता हूँ, कि आप कह दें कि येस और नो, वॉट एवर योर डिसीजन इज, आप लिख दीगा और उसको जस्टिफाई भी करें, खाली येस और नो नहीं लिखना। ठीक है, मैं भी आप पे छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन आपने एक चीज लिखनी है इसमें से। ठीक है, आप लिखेंगे
thus yes, Reese should go for full accounting records because it will help him in future for expansion purpose. ठीक है, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आप ऐसे छोटा सा लाइन लिख सकते हैं, आपने 2 मार्क्स तो यहाँ ले लिए, 2 मार्क्स यहाँ ले लिए, जो 5th मार्क है वो डिसीजन का है, उसमें यस या नो में से एक लिखना है। ठीक है, दोनों नहीं लिखने, फिर रिपीट कह रहा हूँ, गेटिंग इट। लास्ट पॉइंट जो है वो यही है कि दोनों नहीं लिखने होते, कोई एक चीज लिखनी होगी। गॉट इट? क्लियर है? जिसको आप फेवर जी करें। सर। तो लेकिन खाली यस भी नहीं लिखना, यस लिख के भी नहीं छोड़ देना, गलत हो जाएगा। यस और फिर एक स्टेटमेंट लिख दें, स्मॉल स्टेटमेंट, सही है कि यस अगर लिखने से मैंने यस के रीस शुड गो फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एज इट विल हेल्प हिम इन फ्यूचर प्रोग्रेस, या फ्यूचर में अगर उसको एक्सपेंशन करना है इस तरह, फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन विल हेल्प हिम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, नो अगर नो लिख रहे हैं तो नो का इस तरह लिख दें, स्मॉल स्टेटमेंट के नो रीस शुड नॉट गो फॉर फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिकॉज ऑफ ऑलरेडी रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी, उसका प्रॉफिट ऑलरेडी बहुत लो है, तो ही माइट थिंक अबाउट इट इन द फ्यूचर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ही माइट थिंक, बाद में सोच ले, अभी नहीं करे, अभी को मेरा लग रहा है इसने अभी स्टार्ट करा है तो बाद में कर ले, बिकॉज अगर देखा जाए इसके पास कैश भी नहीं है, सिर्फ $240 और साल के आखिर में $110 हो गए, तो उसकी ऑलरेडी कैश मैनेजमेंट प्रॉब्लम चल रही है, तो वो हायर भी नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर, अगर मुझे इसका आंसर लिखना होता है एग्जाम में तो मैं कहता है कि नो भाई, अभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसके पास कैश मैनेजमेंट ही नहीं है। ठीक है, गेटिंग इट एवरीवन? क्लियर हो गई बात? विद दिस हम इसको कंक्लूड करते हैं और फिर मैं क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, तो मेक श्योर कि आप वो प्रैक्टिस कर लें। सही है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, यस या नो मैंने खाली यहाँ पर लिखा है, स्टेटमेंट आपने लिखनी है और उसमें से कोई एक लिखना है। ठीक है, गॉट इट? क्लियर है बात? ओके जी, सो दैट्स इट। कोई क्वेश्चंस? नो सर। चले, गुड No. लक, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय। थैंक यू Thank सर। you. Allah Hafiz.